of digital marketing? एक्चुअली जैसे कि हम मार्केटिंग पहले नॉर्मल होती थी, जैसे कि पैम्पलेट्स वगैरह हम बांटते थे। अगर किसी के बिजनेस की, अगर उसको प्रमोट करना है कोई प्रोडक्ट या फिर कुछ कह सकते कि बिजनेस का कुछ प्रमोशन करना है, तो डिजिटल मार्केटिंग का यूज होता है सोशल मीडिया के लिए। जैसे फेसबुक मार्केटिंग चलती है, इंस्टाग्राम पे भी हम देखते हैं मार्केटिंग। सो Okay. वी कैन यूज फॉर दैट, फॉर मार्केटिंग वी कैन यूज सोशल मार्केटिंग। Social media marketing. Okay. Yes, Checking. So this is your first class, right? yes. Only one I am here, ma'am. Yeah, actually, there are other students, but they have their different timing. So I'll switch you in that Okay. batch later. First, I'll just cover what I have done in that class. Then I'll switch it to that. Okay. Sure, ma'am. It हाँ, will take sure. one or two class. Okay. Okay, ma'am. Yeah. Okay, so as of now, I'll just share my screen. Give me a second. And I'll brief you about like what is digital marketing and how we can do Okay. it to promote Yes. our product and services on digital platforms. Okay. Okay, ma'am. Yeah. My voice is like properly audible, right? Yes, ma'am. Okay. Mm. Like, what did you done in your graduation? Can I know that if you don't have problem with that? No issue, ma'am. Actually, I completed my BSc in computer science Okay. in 2014. It's very long. 2000? 2014. Okay. That's good. Yeah. Wait. That's great. I'll just share my screen. Wait a second. Mm. Just confirm me if my like screen is visible, right? Okay. Yeah, Uh, is it visible right now? yeah. It's loading, I think. It's visible, I think. Yeah. Now it's ready. So we'll just go with that, like what is digital marketing. पहले समझते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है, क्या क्या फीचर्स बिल्कुल या मैम। कंपोनेंट्स इसके अंदर में आते हैं, उसके बाद ही हम आगे प्रोसेस कर पाएंगे कि जब तक बिल्कुल हाँ। थियोरिटिकल नॉलेज नहीं होगी तब तक प्रैक्टिकल करके इट डज नॉट हैव अ सेंस, राइट? सो व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग? Digital marketing refers to the use of digital channels, as you said, the platforms and the technologies to promote our product and services to our targeted audience. Targeted audience क्या हुआ? जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स दे रही हूँ, ठीक है, मेरी टारगेटेड ऑडियंस कौन सी होगी? 18 एज से लेके इट कैन बी लाइक 40 45, इट इट कैन बी लाइक टिल दैट। सो 18 से जो 45 ईयर्स के एज के पीपल हैं, दे कैन ऑप्ट फॉर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। सो उसके लिए हम क्या करेंगे? डिजिटल चैनल्स का हम यूज करेंगे टू प्रमोट आर कोर्सेज or any product or the services. So this is my services which I'm providing digital marketing course to our to my audience which are interested in that particular course. Okay. It encompasses a broad range of online marketing activities and tactics that organizations leverage to connect with their audience. तो जितने भी हम ये टेक्टिक्स है, बिजनेस मार्केटिंग एक्टिविटीज है, जो भी हम करते हैं अपनी जो भी ऑडियंस है उनको अट्रैक्ट करने के लिए, और जो भी हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं, एक तरह से उनको एक इंफॉर्मेशन देने के लिए कि हाँ दैट we are let's say Prayog is giving this services, and if anyone interested in that, they can opt for that particular service. So how it will, like, how it will help us or to connect with our audience and to build our brand awareness. So Prayog is our brand, and what we need to do is we have to spread awareness about Prayog, that this particular Prayog company is providing particular courses. It will obviously increase our brand awareness, and we if we have the
website which will drive a website traffic. So whenever some user or people go to the price.com and searches for the courses, or they switch from one pages to other service pages, what it will count as a website traffic, because they are landing to my particular website and they are searching services related to their needs. So once they will go to my website, what it will happen, they will particularly, let's suppose you went to price.com and choose a digital marketing course, and you send an inquiry to us. If that inquiry converted it to the lead, and if that person like successfully enrolled in our course, it will come as a lead that we like did some activities and we get the customer from this activities. Okay. So what are the key components of digital marketing? Like what include in digital marketing? Digital marketing is a vast topic. Whatever includes in that, we'll just go through that. First, what is search engine optimization, which is SEO. So what it will help us, it will help our content to optimize in search engine result pages. How it will help us? Because whenever we go to the Google and if we search for anything, any topic or anything, like just a small thing, it will wait a second. Let's suppose I am searching for a digital marketing course. Let's suppose you are in Nagpur, right? So I'll search for the particular location. So what it is, digital marketing course in Nagpur. This is my keyword and I'm searching it on Google. So what Google will do it, whatever the data Google have, they will show it to me. Like these are the digital marketing course providers which they provide. So we can go to any of this and we can check the website of that particular services or the particular company. So here you can see IIDM, PDM in Digital Institute. So these are all the search results. The keyword which is I have searched for digital marketing course in Nagpur. So this is the main thing. What we have to do is whenever we are like opening any business or we are doing any projects, so they have particular keywords. So what we need to, the whole thing about SEO is to work on particular keyword. So any user search for that particular terms, so it should be, or it should show our website into Google. When we work for the particular keywords, SEO comes under the backend of our website. Let's suppose this is my website, which is prive.com, and they offers multiple courses. Okay, wait a second. So just go to the courses and they have multiple courses. So whenever user come to this, if they are interested in mean full stack development, they can go for it. Or let's suppose I have searched in Google mean full stack development course. So if I have done a particular work or good work behind the backend or the did off page activities, what Google will do it, whenever the user search for this particular term, they will show my website in Google. Like here you can see Simplilearn and Oracle. Amazon.com is different, MainStack. So there are other options. If I have done a particular good job, backend job, which is SEO, so what it will do is instead of MongoDB, I am able to see prive.com. So we have to do this whenever user search for particular query or anything. So we have to make sure our website is visible to the Google, and whenever user search for that particular term, they'll be able to see my particular website. So it's mainly to work on our relevant keywords. Whatever the business we are working on it, we have to choose the relevant keywords for that and create a high quality content. How we will create a high quality content? Like we suppose we have a particular keyword which I have typed it here, which is mean full stack development. So this is my keyword. What I did is this is H1 tag, like heading of
particular page and this is my particular keyword, what I did is I have used this particular keyword and my search URL and the course URL too. And other things I have also used in my content, the web content and other content, course overview and other content as well. So what Google will do, if anyone searching for that particular course, they will show up my this page if my SEO is very well and good and I have worked on the relevant keyword. So it will work like that. So we have to work in backend for better SEO. Okay, any doubt? No, no. Okay. So second part is search engine marketing, which is SEM, which includes paid advertising to increase visibility on search engine result pages. So what it will do is, suppose I am searching anything on Google. Let's say this was about the course. Let's suppose I search for the campus, or let's suppose Reebok shoes for men. Okay, I have searched for this particular term, and what Google will do, the whatever the data Google have, they will show it to me. ठीक है, यहाँ पे ये शो हो रहा है, ये पूरे यहाँ पे भी शो हो रहा है. तो ये सारी डिटेल्स, हम कुछ भी कीवर्ड हम यहाँ पे सर्च करेंगे ना, तो पर्टिकुलर अगर उससे रिलेटेड कोई डेटा होगा गूगल के पास में, तो दैट विल शो अप टू मी. ठीक है, यहाँ पे अगर मैं और कुछ भी सर्च करूँ, लेट्स सपोज डेटा एनालिटिक्स कोर्स इन दिल्ली. ओके, सो आई हैव सर्च फॉर दिस पर्टिकुलर टर्म. ये यहाँ पे जितने भी बिजनेसेस है वो यहाँ पे शो कर दिया, जैसे मैंने पहले भी करा था, कुछ और कीवर्ड सर्च करा था तो वहाँ पे भी शो हो रहा. तो यहाँ पे क्या है कि ये जो वेबसाइट यहाँ पे आ रही है ना, फर्स्ट रैंक पे, सेकंड रैंक पे, तो व्हाट दे हैव डन इज दे हैव डन अ गुड एसईओ of this particular URL, data analytics course in Delhi. So they have used this keyword into their content and they spread that particular keyword using or creating other content, other blogs or any other thing. So that's why whenever people searching for that particular term, it is showing into the second number of the Google search result pages. अगर मैं कुछ और भी सर्च करूं तो यहाँ पे मान लो सिर्फ ये टर्म मैंने सर्च करा है यहाँ पे, तो यहाँ पे दिखाता है कि कितने सर्च रिजल्ट्स यहाँ पे आए हैं. आपने देखा होगा कभी भी कि 32 लाख है, मिलियंस हैं, ऐसे. सॉरी, यू वर सेइंग समथिंग. नो नो, आपने बोले थे ना ऐसे कुछ आता है रिजल्ट करके कितना सर्च हो. हाँ, यहाँ पे आता है बट इट्स नॉट शोइंग हियर राइट नाउ. आई डोंट नो. लेट्स गो टू द अदर. Let's suppose I want to build my resume, so I'll search for resume builder. I'll show you one more thing. Whenever you are searching for the particular keyword, if like there are other companies who will be like paying for ads, so यहाँ पे sponsored आता है, it means this particular company, they have run a particular ad, that's why it is showing into the sponsored ad के अंडर में शो हो रहा है यहाँ पे. ठीक है, और भी डिटेल्स यहाँ पे. यहाँ पे क्या था मेनली कि जो सर्च इंजन मार्केटिंग है वो मेनली पेड एड्स के ऊपर में है. ठीक है, तो अगर हाँ. मैंने यहाँ पे यूजर पे इस पे क्लिक करा रिज्यूम नाउ पे, तो क्या होगा, जो रिज्यूम नाउ कंपनी है उसके अकाउंट से कुछ अमाउंट डिडक्ट होगा. मेनली एसईएम में क्या होता है, इट्स अ पेड एडवर्टीजमेंट, पे पर क्लिक. whenever some user click onto that sponsored ad, the some amount, it can be either 80 rupees or the 100 rupees, they will deduct it from that particular company's account ओके. स्पॉन्सर्ड एड्स के अंदर. ठीक है, तो स्पॉन्सर्ड एक हो गया पेड, और दूसरा होता है ऑर्गेनिक. ऑर्गेनिक क्या होगा, ठीक है, ये मेरा कीवर्ड है रिज्यूम बिल्डर. तो ये रिज्यूम बिल्डर .com क्या है, एक कंपनी है जिसने अपने बैकएंड में बहुत अच्छा एसईओ कर रखा है.
इसीलिए इसकी रैंकिंग क्या है, फर्स्ट पेज पे दिख रही है, मुझे फर्स्ट नंबर पे दिख रही है, सेकंड नंबर पे भी हाँ। है, थर्ड नंबर पे भी है। तो ये हमारा हो गया है क्या, ऑर्गेनिक एसईओ। दो टाइप्स के एसईओ होते हैं, एक तो पेड होता है और एक नॉन पेड होता है। तो ये ऑर्गेनिक हमारा आता है नॉन पेड में। पेड में हमारा क्या है, स्पॉन्सर्ड एड्स, कि हमने कुछ अमाउंट पे करा है गूगल एड्स में, और अगर गूगल यहाँ पे शो करेगा, अगर पर्टिकुलर कीवर्ड कोई सर्च करेगा तो वो अमाउंट यहाँ से डिडक्ट होगा, अगर कोई भी इस पर क्लिक करेगा। ठीक है, एनी डाउट? नो मैम। ओके, आप नोट डाउन करते जाइए, अगर इसको, अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप एक बारी, जब क्लास हो जाएगी कल, मे भी आपकी वीडियो अपलोड हो जाएगी, तो एक बारी आप दोबारा देख लेना, ताकि नेक्स्ट क्लास तक आपका पूरा रिवीजन हो कि हाँ ये चीज़ें करी थी। उसमें कुछ डाउट होगा तो आप नेक्स्ट क्लास में एटलीस्ट पूछ सकते हो। ठीक है हाँ। हाँ। जी। ये था सर्च इंजन मार्केटिंग, जिसमें हमने पढ़ा कि पेपर क्लिक में और पीपीसी में क्या होता है, और ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक ट्रैफिक में क्या होता है। ठीक है, देन आता है हमारा कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग में क्या होता है, आजकल आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द यूट्यूब शॉर्ट्स होते हैं, रील्स होते हैं, जहाँ पे एक एक कुछ कुछ वीडियोस ऐसी होती है जहाँ पे एक लेसन होता है, पार्ट वन पार्ट टू करके आता है ना, वीडियोस आपने देखी होंगी कभी। हाँ। हाँ जी, तो उसमें क्या होता है, मेनली क्या करता है यूजर, अपना जो उसका कंटेंट है, यूट्यूब कंटेंट है या इंस्टाग्राम कंटेंट है या फेसबुक कंटेंट है, वो क्या कर रहा है, कंटेंट अपना क्रिएट कर रहा है। कैसे, वीडियोस के थ्रू कर रहा है, या कोई आपने बिजनेस की ब्लॉग्स वगैरह देखे होंगे। ठीक है, हाँ जी। हाँ। आर्टिकल्स वगैरह देखे होंगे, अदर फॉर्म से देखे होंगे, नॉर्मल पोस्ट भी होती है इंस्टाग्राम पे अगर आपने देखी होंगी। तो जनरली पीपल क्या कर रहे हैं, या बिजनेस क्या कर रहा है, अपना कंटेंट प्रमोट कर रहा है थ्रू, कैसे, सोशल मीडिया चैनल्स के थ्रू। वो कुछ भी हो सकता है, या तो आप ब्लॉग पोस्ट करिए डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स पे, या आप वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं अपने बिजनेस से रिलेटेड, आप कोई कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, कोर्स से रिलेटेड आपने एक वीडियो बनाई कि आपकी कंपनी ये है, ये कोर्स प्रोवाइड कर रही है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, और कौन कौन से लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल्स आपने ऐड करी एक वीडियो में और आपने पोस्ट कर दी। तो कोई भी अगर आपकी वो वीडियो देखेगा, आपने उसमें कॉन्टैक्ट नंबर ऐड करा हुआ है, आपने अपनी वेबसाइट ऐड करी है, तो यूजर क्या करेगा, वो ट्राई करेगा, अगर वो रियली इंटरेस्टेड होगा आपके कंटेंट में, तो व्हाट दे विल डू इज दे विल आइदर कॉन्टैक्ट यू और दे विल गो फॉर योर वेबसाइट। तो वहां पे जाके वो डिटेल्स वगैरह गैदर करेंगे, फिर उसके बाद दे विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्टेप। तो इसमें क्या है कि हम अपने कंटेंट की मार्केटिंग कर रहे हैं। कंटेंट, कौन सा कंटेंट, जो हमारा बिजनेस है, बिजनेस क्या करता है, क्या डिटेल्स देता है, क्या सर्विसेज हैं उसकी, तो उसकी आप प्रमोशन करते हैं डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स में। चैनल्स हमारे, एक तो सोशल मीडिया चैनल्स हो गए, और बाकी हमारे दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर हम ब्लॉग्स वगैरह पोस्ट करते हैं। ठीक है, ये हो गया कंटेंट मार्केटिंग। देन आता है हमारा सोशल मीडिया मार्केटिंग, जिसमें हमने अभी, सेम है कंटेंट मार्केटिंग में, वही है कि हम कंटेंट क्रिएट करके डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स में डाल रहे हैं, सोशल मीडिया में भी डाल रहे हैं। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग में और एक फॉर्म होता है, जैसे जो भी हमारी प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं, हम क्या करते हैं, सोशल मीडिया में जाके उसकी, या तो हमने वीडियो बना के डाली या पोस्ट बना के डाला, कुछ भी डाला, बट वो हमारे बिजनेस से रिलेटेड है, तो हमने वो शेयर कर दिया। शेयर करने से क्या हुआ, जो हमारा ब्रांड है, ब्रांड अवेयरनेस वो इंक्रीज होगा, और एज इन, वो जो वेबसाइट हमने ऐड करी होंगी, अगर उस पर कोई जाता है सोशल मीडिया के थ्रू, तो उससे मेरा वेबसाइट का ट्रैफिक भी बढ़ेगा। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, जो हमारी ऑडियंस है वो हमारे कंटेंट के साथ एंगेज कर रही है। इसमें दो डिफरेंट चीजें हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि एक तो फेसबुक एड्स होती हैं, ठीक है, और होता है इंस्टाग्राम ऐड भी होता है। फेसबुक एड्स हो गई, इंस्टाग्राम एड्स हो गई, और लिंक्डइन एड्स भी होते हैं, साथ के साथ ही गूगल के भी होते हैं। गूगल एड्स भी रन होती है, जैसे अभी दिखाया मैंने, गूगल पे जो स्पॉन्सर्ड आ रहा था वो गूगल एड्स के थ्रू आ रहा है। आप इंस्टाग्राम पे जाओगे, इंस्टाग्राम में भी एड्स वगैरह आती रहती है। ठीक है, तो वो इंस्टाग्राम एड्स होगी। फेसबुक पे आप जाओगे तो वहां पे आपने देखा होगा कि मोस्टली क्या होता है, कभी कभार फैशन के या जितने भी वो प्रोडक्ट्स के हैं वो एड्स वगैरह चलते रहती हैं। आप फेसबुक स्क्रॉल कर रहे हो, आप देख रहे हो एक वीडियो देखने, आप देखिए आपने, आपने नीचे स्क्रॉल करा तो नीचे में क्या आता है, थोड़ा ऐड आता है। तो बहुत सारे क्या हो गए, पेड एड्स हो गए। नॉन पेड ट्रैफिक में क्या हो गया, मतलब पेड एक्टिविटीज हो गई सोशल मीडिया के लिए।
नॉन पेड में क्या हो गया, हमने नॉर्मली कोई वीडियो बनाई और पोस्ट बनाया, हमने सीधा जाके सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दिया। तो उससे क्या होगा, अगर कोई भी यूजर आएगा या यूजर सर्च कर रहा होगा या उसकी फीड पे अगर हमारी पोस्ट जाती है तो वो चेक करेगा पोस्ट को नॉर्मली। तो ऑर्गेनिकली हम ऐसे कर सकते हैं। और पेड के थ्रू जो भी आपकी सर्विसेज हैं उसके लिए आप अलग से पेड एड्स रन कर सकते हो सोशल मीडिया चैनल्स पर। ठीक है। एम आई ऑडिबल राइट? यस। ओके। Then next is email marketing, sending targeted messages to a group of people via email to promote products or services via email. Okay, wait a second. Sorry for the interruption. देन ईमेल मार्केटिंग में क्या था कि अगर हमारे पास में बल्क में ईमेल है यूजर्स के या कहीं से हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो बल्क में हमारे पास क्या आता है, ईमेल आता है। ठीक है, ईमेल आईडीज आ जाती है। तो उससे हम क्या कर सकते हैं, मेनली ईमेल मार्केटिंग के लिए ईमेल के कुछ वेबसाइट्स होती हैं जैसे मेल चिम्प होता है या और होता है। ठीक है, वहां से हम क्या कर सकते हैं, हमने एक अच्छा सा टेम्पलेट चूज करा, टेम्पलेट चूज करने के बाद उसमें हमने अपनी सर्विसेज डाल दी। ठीक है, सर्विसेज हमने ऐड कर दी, जो भी डिटेल्स हमें ऐड करनी थी वो हमने ऐड कर दी। ठीक है, एक अच्छा सा हमने टेम्पलेट बना लिया। बनाने के बाद जो भी हमारे कस्टमर्स हैं, जिनके कस्टमर्स के कभी कभार हमारे पास फॉर्म आ जाते हैं, ठीक है, गूगल फॉर्म्स आते हैं या हाँ। और फॉर्म्स भी आ जाते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, उनको अपना जो भी कंटेंट है या अपना जो भी बिजनेस के न्यू डिटेल्स हैं या न्यू सर्विसेज हैं उससे रिलेटेड हम उनको ईमेल सेंड कर सकते हैं बल्क में। लाइक मल्टीपल हम ईमेल्स ऐड करके टेम्पलेट हमने बना लिया, उसके बाद हमने ईमेल का कैंपेन बना के उसको रन कर दिया। ठीक है, ऐसे करके कर सकते हैं। बाकी जो अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, जितने भी शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स है या अदर प्लेटफॉर्म्स हैं वो क्या करते हैं, जैसे मैं अमेजोन पे गई, मैंने कुछ सर्च करा, जैसे मुझे आईफोन चाहिए था, मैंने सर्च करा, सर्च करके मैंने उसको क्या कर दिया, ऐड टू कार्ट कर दिया। ऐड टू कार्ट करने के बाद मैंने क्या करा, 5-10 मिनट बाद वेबसाइट को बंद कर दिया। ठीक है, वेट अ सेकंड, सॉरी। ओके। हम्म तो अमेजोन पे गई मैंने एक प्रोडक्ट देखा, उसको ऐड टू कार्ट करा। ऐड टू कार्ट करने के बाद क्या हुआ, मैंने उसको वेबसाइट को बंद कर दिया 5 मिनट में। ठीक है, तो अमेजोन क्या करेगा, 1-2 दिन में आपके पास में मेल सेंड करेगा कि आपने ये प्रोडक्ट बाय करने के लिए आपने ऐड टू कार्ट करा था बट आपने उसकी पेमेंट अभी तक करी नहीं। तो अमेजोन क्या कर रहा है, ईमेल के थ्रू अपने कस्टमर को रिटेन कर रहा है कि आपका कस्टमर है कोई, तो आप उसको क्या करोगे, अपनी सर्विसेज वगैरह सेंड करोगे कि जो आप न्यू सर्विसेज दे रहे हो। या अगर कुछ भी है आपके पास, फैशन का कुछ है, वेबसाइट है, तो उसमें भी आप ये इम्प्लीमेंट कर सकते हो कि कस्टमर को वापस लाने के लिए आप उनको या तो ऑफर्स दे सकते हो
या अमेजोन क्या करेगा, मेरे को 5 to 10% का थोड़ा सा डिस्काउंट दे देगा, ऐसा करके कोई ईमेल सेंड करेगा कि आप ये करेंगे तो इसके साथ में ये मिलेगा। ऐसा करके कस्टमर्स को आप रिटेन कर सकते हो। इससे क्या होता है, जो कस्टमर और बिजनेस है उन दोनों में जो पर्टिकुलर रिलेशनशिप होता है वो बिल्ड होता है। ठीक है। देन आता है हमारा एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है, कुछ पर्टिकुलर एफिलिएट मार्केटर्स होते हैं जो क्या करते हैं, कंपनी के साथ टाई अप करते हैं, और उनके जो प्रोडक्ट्स होंगी, जैसे मान लो मेरी कोई कंपनी है, ठीक है, या मैं कोई सर्विस दे रही हूँ, या लेट्स सपोज जी न्यूज़ का चैनल देख लेते हैं, क्योंकि मोस्टली जो न्यूज़ चैनल्स होते हैं, कुछ कुछ जो बायर्स होते हैं या डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, वो न्यूज़ चैनल्स को टारगेट करते हैं अपना प्रोडक्ट वहाँ पे शोकेस करने के लिए, ताकि अगर कोई प्रोडक्ट वहाँ से देख लें, और अगर इंटरेस्टेड होगा वो, तो वो क्या करेगा, वो प्रोडक्ट वहाँ से चेक करके वो सीधा आपकी वेबसाइट पे जाके देख लेगा। ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ पे आपको ये ऐड दिख रही है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है एडवर्टीजमेंट, गूगल हाँ। ड्राइव हो गया, व्हाट्सएप, ये सब, मैकबुक एयर 10,000 इंस्टेंट कैशबैक, गायब हो गया ये। तो ऐसे करके यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हैं, न्यूज़ चैनल्स में आप एक पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट यहाँ पे रन करवा सकते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, वीडियो जैसे रिया। पॉपअप आता है ना, हाँ वैसे भी हो सकता है क्या? हाँ, पॉपअप आता है और वैसे भी हो सकता है, पॉपअप भी मोस्टली आते ही हैं। ठीक है। ये न्यूज़ हाँ। बढ़ गया, ये यहाँ से हटा दो, क्लिक करा मैंने, उसके मैं दूसरे उस पर चली गई। तो ऐसे करके जो पॉपअप्स वगैरह होते हैं या और भी चीज़ें हैं, वो हम ऐसे न्यूज़ हाँ। चैनल्स या अदर प्लेटफॉर्म्स होती हैं वो हमें फाइंड करनी पड़ेंगी, बट उसमें थोड़ा टाइम टेकिंग है, बट वी हैव टू फाइंड हाँ। दैट। अगर हम उस सर्विस में इंटरेस्टेड हैं, एफिलिएट मार्केटिंग या उन सब में, तो इसमें क्या होता है, अगर कोई भी जी न्यूज़ के चैनल में गया और उसने यहाँ से क्लिक करके उस प्रोडक्ट को बाय कर लिया, तो जी न्यूज़ को क्या मिलेगा, एक कमीशन मिलेगा उस कंपनी के थ्रू। हम्म। जैसे ओप्पो के ऐड कभी देखी हो आपने न्यूज़ चैनल में, ओप्पो फोन्स हो गए, या एप्पल हो गया, या लैपटॉप। हाँ। वन प्लस हो गया, लैपटॉप हो गया, तो उन सब के भी एड्स यहाँ कर यहाँ पे आते रहते। तो आपने क्या करा, गलती से क्लिक कर दिया या इंटरेस्टेड है तो आपने क्लिक कर दिया, क्लिक करने के बाद आप क्या हाँ। चले गए, उसके वेबसाइट पे चले गए। तो अगर वो पर्सन वहां से वो लैपटॉप या फोन वहां से परचेज कर लेता है, तो जी न्यूज़ को क्या मिलेगा, एक कमीशन मिलेगा, एक पर्टिकुलर परसेंटेज का कमीशन होता है, वो यहाँ पे मिलेगा उसको। तो एफिलिएट मार्केटिंग में जनरली यही इंक्लूड होता है कि आप किसी बिजनेस के साथ टाइप कर रहे हैं या किसी चैनल्स के साथ, तो आप अपनी जो भी एड्स वगैरह हैं आप उनको वहाँ पे शो कर रहे हैं। शो करेगा तो उसको कुछ ना कुछ पैसे तो देने पड़ेंगे, वो फ्री में तो करेंगे नहीं, है ना। हाँ। जी। सो ये था एफिलिएट मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग भी हो गया। देन आता है हमारा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। ये तो आपको जनरली पता ही होगा, बताओ क्या होता है। हेलो। जैसे कि कोई किसी का चैनल वगैरह होता है तो हम कुछ प्रोडक्ट्स दे सकते हैं उनको प्रमोट करने के लिए। हाँ जी, कैसे करेंगे उसको। उसको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि हमारा हम्म ऐड आप प्रमोशन कर सकते हो क्या? हम्म। रिक्वेस्ट तो नहीं करेंगे, रिक्वेस्ट करने से वो मानेंगे तो नहीं, वी विल हैव टू पे पैसे द। देने पड़ते। हाँ। वी यस। हैव टू पे। हाँ, वी हैव टू पे द सम अमाउंट। सपोज हाँ। 20 to 30,000 आप दे रहे हैं एक पर्टिकुलर वीडियो बनाने के लिए, अगर आप बड़े उसको चूज करते हैं इन्फ्लुएंसर को, मान लो हाँ। कोई इन्फ्लुएंसर है उसके 10-15 हज़ार फॉलोअर्स हैं, तो आपने क्या करा, उसको चूज कर लिया, उसको कितने दे दिए, 10-12 हज़ार दे दिए एक वीडियो के या बाकी और कंटेंट बनाने के। तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग यही होता है कि जो भी इन्फ्लुएंसर हमारे उसमें है, रीच आउट में है, हम उनको रीच कर सकते हैं। रीच करने के बाद जो हम अगर मान लीजिए हमने हमारे कपड़ों का बिजनेस है, ठीक है, हमारा पर्टिकुलर इसी का बिजनेस है, तो हम क्या करेंगे, उनको जितने भी ड्रेसेस आपके पास न्यू आई होंगी या न्यू कलेक्शन आए होंगे, आप क्या करेंगे, एक वीडियो बना लेंगे उनसे, और वीडियो बना के उनके चैनल में पोस्ट कर दिया, आपने अपने चैनल पे पोस्ट कर दिया। जो भी उस फॉलोअर को, इन्फ्लुएंसर को फॉलो करता होगा, वो क्या करेगा, उसको अच्छी लगेगी तो आपकी वेबसाइट पे आ जाएगा वो, या आपको कांटेक्ट करेगा। तो मेनली इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में यही होता है, इन्फ्लुएंसर ढूंढना, देन फिर उसके बाद जो भी आपकी बिजनेस नीड्स के अकॉर्डिंग आप उससे काम करवा लो,
और आप उसको कुछ पेमेंट कर दो। ठीक है। देन आता है ऑनलाइन पब्लिक रिलेशन। ऑनलाइन पब्लिक रिलेशन में क्या होता है? मैनेजिंग आर ऑनलाइन प्रेजेंस, reputation. How we will manage it? Let's suppose I went to the Google and I search for cafe near me. Okay. गूगल पे गई मैं, कैफे यहाँ पे मैंने देखा। ठीक है। देन यहाँ पे आ रहा है मोका कैफे, पिज्जा, कॉफी कैफे, एंड दीज आर अदर डिटेल्स। तो मैं क्या करूँगी, इसकी रेटिंग अच्छी है, 4.5 है। आई जस्ट गो टू दैट, और यहाँ पे जो भी इनके मेन्यूज वगैरह हैं या और जितने भी चीज़ें हैं डिटेल मुझे चेक करनी होंगी, मैं यहाँ से चेक कर लूँगी। फिर पर्टिकुलर लोकेशन देखूंगी मैं, लोकेशन कहाँ पे है। ठीक है। देन अगर इनके पास में ओपनिंग आवर्स का ऑप्शन यहाँ पे इन्होंने डाला हुआ है, तो मैं यहाँ से भी चेक करके जा सकती हूँ। देन यहाँ पे प्राइस पर पर्सन भी लिखा हुआ है कि एक पर्सन के कितने लगेंगे, दो, मिनिमम 200 से 300। ठीक है। और भी डिटेल्स डाली हुई है यहाँ पे, मेन्यू भी मैंने ऐड करा हुआ है, तो सारी डिटेल्स यहाँ पे फुलफिल है जो एक यूजर जाके सर्च करेगा। ठीक है। ये तो हो गया कैफे का। अगर मैं ऐसे ही उसमें सर्च करूं कि मुझे चाहिए पर्टिकुलर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स चाहिए, लोकेशन का मैंने पहले बताया था, बट हम पर्टिकुलरली इस पे आते हैं। ठीक है। मुझे चाहिए डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, मैं क्या करूंगी, मैं गूगल पे गई, मैंने सर्च करा। सर्च करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है। ठीक है। यहाँ पे क्या है, वेबसाइट्स आ गई यहाँ पे। जब मैं लोकेशन ऑन करूंगी तो लोकेशन वाइज यहाँ पे दिखा रही हाँ। है। लेट्स सपोज मैं रह रही हूँ दिल्ली में। दिल्ली में, तो मैंने यहाँ पे सर्च करा, तो दिल्ली में जितने भी बिजनेसेस होंगे वो क्या करेगा, यहाँ पे पर्टिकुलरली जो भी उनकी ऑनलाइन प्रेजेंस होगी तो वो यहाँ पे शो करेगा। सपोज मैं गई इस पे IIDL। ठीक है। तो मैं यहाँ पे चेक करूंगी कि इनके फोटोज, फोटोज इज इट नॉट नेसेसरी, व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू चेक द वेबसाइट कि वेबसाइट प्रॉपरली है कि नहीं है। और एड्रेस चेक करूंगी, अगर मेरे पास है तो मैं जाऊंगी। यहाँ पे ओपन आवर्स भी लिखा है, फ़ोन नंबर भी लिखा है, तो फ़ोन नंबर मैं डायरेक्टली जाके यहाँ पे कॉल कर सकती हूँ उस इंसान को जिसका ये बिजनेस है या कोई और जो हैंडल कर रहा है उनका बिजनेस। तो कॉल करके मैं डिटेल्स फ़ोन पे मंगवा सकती हूँ। अगर मुझे चाहिए कि मुझे वेबसाइट चेक करनी है तो मैं वेबसाइट पे चले जाऊंगी। मुझे लगा कि सही है तो यहाँ पे शो हो रहा है, देखिए प्राइस भी शो कर रखा है इन्होंने। और यहाँ पे स्पीक टू आर एक्सपर्ट, एक्सपर्ट भी शो हो रखा है यहाँ पे। इसमें सारी चीज़ें डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है। ठीक है। तो ऐसे करके हम ऑनलाइन प्रेजेंस अपनी इंक्रीज कर सकते हैं। अगर मैं दिखाऊं प्रारूप का, मैं वो भी दिखाती हूँ इससे तो। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रारूप which has 4.8 रेटिंग्स which is 246 गूगल रिव्यू। यहाँ पे वेबसाइट भी है, डायरेक्शन भी है। ठीक है। किसी को शेयर करना है आप यहाँ से कर सकते हैं, कॉल करना है कॉल भी कर सकते हैं। अगर आपको लोकेशन पे ही जाके देखना है तो आप लोकेशन पे भी जाके देख सकते हैं। तो ऐसे आप अपने क्या करेंगे, जो भी आपके बिजनेस अगर आप रन कर रहे हैं तो उसकी ऑनलाइन प्रेजेंस होना इट्स वेरी मस्ट। ठीक है। जब तक ऑनलाइन प्रेजेंस आपको यूजर को नहीं दिखेगी, वो क्या करेगा, वो ऑप्शन के लिए जाएंगे ही नहीं। ऑनलाइन प्रेजेंस होना इज इट वेरी नेसेसरी, इट्स वेरी नेसेसरी। ओके। कैसे मेंटेन करना है, कैसे प्रोफाइल क्रिएट करनी है, वो भी हम आगे जाके आगे वाली क्लासेस में करेंगे। ठीक है। तो ये हो गया, हमने क्या क्या कर लिया, हमने एक्टिविटीज कर ली। ठीक है। SEO हो गया, SEM हो गया, हमने कंटेंट मार्केटिंग कर लिया, हमने सोशल मीडिया कर लिया, ईमेल मार्केटिंग भी कर लिया। तो ये सारी चीजें करने के बाद हमारा लास्ट ऑप्शन क्या आता है, एनालिटिक्स एंड डेटा एनालिसिस। ठीक है। हमने SEO पे कुछ काम करा, बैकएंड में काम करा, वेबसाइट के ऑन पेज पे भी काम करा, ऑफ पेज पे भी काम करा। ऑन पेज क्या हो गया, जो हमारी पर्टिकुलर वेबसाइट है उसके अंदर में क्या क्या डेटा है, क्या क्या कंटेंट है, कौन कौन से मेरे सर्विस पेजेस हैं, मैंने वो सारे चेक करे। ठीक है। उस पर मैंने सारा काम करा। तो गूगल ने क्या करा, गूगल ने आके मेरी वेबसाइट को रीड करा, उसने सारा डेटा अपने डेटा में रख लिया, डेटाबेस में रख लिया। तो अगर कोई भी यूजर आएगा, सर्च करेगा एक पर्टिकुलर क्वेरी, अगर मेरी वेबसाइट काफ़ी अच्छी होगी और अच्छे से मैंने मेंटेन कर रखी है, मैंने सारी चीज़ें बैकएंड में काम कर रखा है, तो क्या करेगा गूगल, उस यूज़र को मेरी वेबसाइट भी शो करेगा। तो
एनालिटिक्स में हमें क्या पता चलता है? एनालिटिक्स टूल्स हैं काफी, जैसे गूगल एनालिटिक्स है। इसमें मेनली क्या होता है, जितने भी हमने काम करे होंगे, या तो हमने कैंपेन्स रन करे, या तो हमने एसईओ करा। एसईओ में क्या करा? हमने एक्टिविटीज करी। एक्टिविटीज में क्या क्या करा? हमने ब्लॉग सबमिट करा, बाकी जा अदर वेबसाइट्स में जाके वॉक करा। उसके बाद हमें क्या करेगी, जो हमारी वेबसाइट की परफॉर्मेंस है हमको गूगल एनालिटिक्स में दिखेगी कि जितने भी हमने काम करे हैं वो सक्सेसफुल हुए कि नहीं हुए, या गूगल पे दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे। और हमारी परफॉर्मेंस क्या थी इन विद इन अ 1 और 2 मंथ्स। हमें जो एनालिटिक्स है मेनली विद इन अ वीक, हर वीक चेक करनी चाहिए कि हर वीक में आप काम कर रहे हो तो उसका रिजल्ट क्या है, परफॉर्मेंस क्या है। ठीक है। तो अगर कोई भी हमने कैंपेन्स रन करे, मान लो हमने फेसबुक एड्स रन करे या इंस्टाग्राम एड्स रन करे, तो वो हमें कहाँ से पता चलेगा? जो जो प्लेटफॉर्म्स है वहीं पर जाके पता चलेगा। जैसे इंस्टाग्राम में है, इंस्टाग्राम मैंने ऐड चलाई, तो इंस्टाग्राम के इनसाइट्स हो गए या उसके प्रोफेशनल डैशबोर्ड में जाके मैं चेक करूंगी कि उसका परफॉर्मेंस कैसा था विद इन अ वीक। ऐसे ही वेबसाइट पे हम काम कर रहे हैं, तो वेबसाइट का जो एनालिसिस होगा वो हमें पता चलेगा गूगल एनालिटिक्स। ठीक है। टूल्स भी हम बाद में कवर अप करेंगे, ठीक है, जितने भी हैं। तो उससे क्या है, जो हमारा यूजर है, यूजर का बिहेवियर क्या है वो हमें पता चलेगा। जैसे मान लो आपने प्राइवेट वेबसाइट खोली, ठीक है, आप गए कुछ पर्टिकुलर कोर्सेज में गए, आपने कंटेंट रीड करा, आपने इंक्वायरी फॉर्म फिल करा। तो ये एक यूजर के बिहेवियर में आया कि यूजर गया मेरी वेबसाइट पे, कुछ टाइम तक रुका, फिर उसने कुछ सोचा, कंटेंट रीड करा या कुछ भी। तो वो एक यूजर का बिहेवियर होगा कि जो मेरा पर्टिकुलर यूजर है मेरी वेबसाइट पे कितने देर तक आके रुका। इट कैन बी 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट्स और 10 मिनट्स। ठीक है। तो ये सारा हम यूजर का बिहेवियर भी हम चेक कर सकते हैं। हम ये भी चेक कर सकते हैं कि एक यूजर आया तो वो कौन कौन से पेजेस में मेरे गया, कितने यूजर्स मेरे कौन कौन से पेजेस तक रीच हुए, फिर उसके बाद उन्होंने बैकआउट कर लिया। तो वो सारी इंफॉर्मेशन हमें गूगल एनालिटिक्स में देखने को मिलती है। ठीक है। हम यहाँ से फिर चेक कर सकते हैं कि अगर हमने कुछ भी गलतियां करी होंगी तो वो हमें दिख जाएंगी, तो आगे से वो गलती रिपीट नहीं करनी है। तो इससे एक पर्टिकुलर हम डिसीजन ले सकते हैं कि हाँ हमें ये चीज़ आगे करनी है और ये चीज़ नहीं करनी है। ठीक है। तो ये सारा था कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, उसके अंदर में क्या क्या इन्वॉल्व है। ठीक है। इतना आपको समझ में आया? हाँ। ओके। तो आगे कंटिन्यू करूँ या इसी को आप रिवाइज कर लेंगे? कंटिन्यू करो। कंटिन्यू करो, ओके। ये था कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, बिकॉज 5 to 10 मिनट्स है लास्ट, इसलिए मैं कह रही थी अगर कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ लो, कंटेंट रीड कर लो और पूछ सकते हो आप। तब तक आप रीड करो, वेट अ सेकंड। सॉरी, एक्चुअली माय
mic was mute and I was like asking you. Sorry, sorry, sorry. Noise is one. Okay, so I asked you about like, do you have any doubts in previous topics like SEO, SEM, SMM, anything? Right now I don't have, but again I will read that, and if I face any issue, so I will ask you Yeah, in I'll next do one thing. session. I'll be sharing you the PDF. You can just go through that, or you can go through the video also. But video you will get tomorrow till afternoon, I think. Okay. ओके, मैं एक बार वो पढ़ के आपको बता दूंगी. हाँ जी, ओके. सो नाउ यू टेल मी लाइक व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, लाइक डिजिटल मार्केटिंग क्या है और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है? डिजिटल मार्केटिंग हम मतलब सोशल मीडिया के थ्रू करते हैं यूजिंग इंटरनेट. एंड सिर्फ ट्रेडिशनल सोशल मीडिया ही मार्केटिंग. नहीं, बाकी और चीजें भी आती है. सोशल मीडिया तो एक टर्म हो गया कि हाँ हाँ, हम्म, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए, सॉरी टू बट इंटरप्ट. यूजिंग इंटरनेट वी कैन से, सॉरी. मतलब ऑनलाइन होती है डिजिटल मार्केटिंग जो भी है. हाँ जी. और ट्रेडिशनल मार्केटिंग? और ट्रेडिशनल मार्केटिंग आई डोंट नो, बट ये हो सकता है कि जो ऑफलाइन होती है मार्केटिंग यस, दैट्स गुड. ये तो हुआ हो डिजिटल सकता है. मार्केटिंग मतलब डिजिटली, ट्रेडिशनल मार्केटिंग मतलब हाँ. ऑफलाइन. ये वर्ड से ही पता चल रहा है, ठीक है. तो इसमें और एस्पेक्ट्स वगैरह होते हैं, तो वो समझ लेते हैं. डिजिटल मार्केटिंग एंड ट्रेडिशनल मार्केटिंग आर टू ब्रॉड कैटेगरीज. ब्रॉड है डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, ट्रेडिशनल मार्केटिंग, ऑफलाइन मार्केटिंग. तो ये दोनों चीजें ऑनलाइन और ऑफलाइन इट डिफर्स, कि हाँ. मार्केटिंग की स्ट्रैटेजीज दोनों में डिफरेंट होती हैं. ऑनलाइन मार्केटिंग की अपनी, डिजिटल मार्केटिंग की अपनी ओन टेक्निक्स होती हैं, अलग से चैनल्स होते हैं, और उसके अलग फीचर्स होते हैं. ऐसे ही और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में इसके फीचर्स डिफरेंट होते हैं, स्ट्रैटेजीज हम दूसरी लगाते हैं जो हम डिजिटल मार्केटिंग में नहीं लगा सकते. ठीक है. तो अलग अलग दोनों की टेक्निक्स हैं, खुद ये वर्ड दोनों अलग अलग हैं, तो टेक्निक्स और कैरेक्टरिस्टिक्स भी इसके अलग अलग हैं. सो फर्स्ट आता है चैनल ऑफ कम्युनिकेशन की. ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में दोनों में चैनल्स कौन कौन से हम यूज करते हैं. डिजिटल मार्केटिंग में आपने बोला कि ऑनलाइन चैनल्स, या दैट्स राइट. ऑनलाइन चैनल्स में क्या क्या आया, पर्टिकुलर हमारे प्लेटफॉर्म्स आए, जैसे वेबसाइट होती है, सोशल मीडिया आपने जैसे बोला, ईमेल मार्केटिंग हो गया, हम ऑनलाइन कर रहे हैं उसको. सर्च इंजन हो गया, सर्च इंजन क्या हो गया, गूगल. तो गूगल पे जाके हम कुछ भी सर्च कर रहे हैं, तो वो क्या हुआ, ऑनलाइन मार्केटिंग हो गया वो. हम्म. ऑनलाइन हम सर्च कर, ठीक. मोबाइल ऐप्स हो गए, ये भी ऑनलाइन हो गया. तो डिजिटल मार्केटिंग मीन्स online channels where we promote our product and services through social media, website, or email, and as well as mobile apps. In traditional marketing, we relies on offline channels like television, radio, print media, newspapers, magazine, and any other advertisement. ठीक है. जो हाँ. आप, जैसे ऑफलाइन हो गया, ऑफलाइन आपका स्टोर है, तो हो सकता है उसकी ऑनलाइन प्रेजेंस भी होगी, बट यू हैव द ऑफलाइन प्रेजेंस टू. कैफेज जो होती हैं मोस्टली हमारी ऑफलाइन होती हैं, ठीक है. हम रेस्टोरेंट जाते हैं, कैफे जाते हैं, वहां पे खा पी के आते हैं वापस. तो ये हमारे क्या हो गया, ऑफलाइन चैनल्स हो गए. ऐसे ही टेलीविजन क्या हो गया, टेलीविजन में हम क्या करते हैं, न्यूज़ देखते हैं, मूवीज देखते हैं, एड्स वगैरह आती हैं, बाकी और चीजें. रेडियो में क्या हो गया, रेडियो में भी न्यूज़ आता है, बट हम क्या करते हैं, उसमें सुनते हैं. सॉन्ग्स हो गए, बाकी और चीजें भी हैं. प्रिंट मीडिया में क्या हो गया, जैसे न्यूज़पेपर में हमने कोई ऐड देखी, या न्यूज़पेपर में हम रीड कर रहे हैं, न्यूज़ रीड कर रहे हैं, एड्स वगैरह उसमें देख रहे हैं, बाकी और डिटेल्स हैं जो हम न्यूज़पेपर के थ्रू करते हैं. बट ये सब ऑनलाइन में अभी धीरे धीरे कन्वर्ट हो रही है. न्यूज़पेपर आपने देखा होगा ऑनलाइन, उसमें आते हैं कुछ कुछ ऐप्स हैं जिसमें आप न्यूज़ रीड कर सकते हो, बट न्यूज़पेपर में क्या होता है, पूरी एड और पूरा न्यूज़ क्या होता है, डिटेल्स में होती है. ऑफलाइन मीडिया में एक हर एक चीज डिटेल्स में होती है. ऑनलाइन में भी होता है, बट इट्स टोटली डिफरेंट. जो बड़े बड़े होर्डिंग्स आपने देखे होंगे कभी हाईवे या कभी कहीं पे,
तो वो सारे भी हमारे ऑफलाइन एड्स में आते हैं। ऑनलाइन में हम क्या करते हैं, ऑनलाइन में हमने पोस्ट बनाई, वीडियो बनाई, हमने कर दिया उसका। ऑफलाइन में क्या हो गया, ऑफलाइन में हमने टेलीविजन पे कोई वीडियो या कोई एड वगैरह बनाई, वो हमने पोस्ट करवा दिया टीवी चैनल्स में। तो वहां पे भी हमने क्या करा, बहुत ज्यादा अमाउंट, अभी आगे भी आएगा, कॉस्ट इफेक्टिव एंड अदर थिंग्स। तो मेनली ट्रेडिशनल मार्केटिंग ये हो गया, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, सिंपल। ठीक है। देन आता है हमारा रीच एंड टारगेटिंग। तो रीच और टारगेटिंग, हम ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू हम कहाँ कहाँ रीच कर सकते हैं और कौन कौन सी जगह पे एंड किस किस को टारगेट कर सकते हैं। ऑफलाइन में भी यही है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में भी, कि हम पीपल या यूजर तक हम कैसे रीच कर सकते हैं और हमारी टारगेट ऑडियंस कैसे कैसे हो। डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है, एक ऑफर्स प्रिसाइज टारगेटिंग ऑप्शन बेस्ड ऑन डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट, बिहेवियर एंड अदर फैक्टर्स। भाई डिजिटल मार्केटिंग में ये होता है कि हम ग्लोबली रीच कर सकते हैं ऑन अ रियल टाइम। जैसे मैं अभी यहाँ पे बैठी हूँ और मान लो मैं कोई प्रोजेक्ट कर रही हूँ, यूएस का कोई प्रोजेक्ट कर रही हूँ, तो वो टाइमिंग हमारा डिफर होता है। रियल टाइम पे जो भी चीजें होती है वो हमें दिखती हैं, चाहे हम ग्लोबली करें या विद इन अ कंट्री करें, विद इन इंडिया और उसके बाद। तो हम ऐसे करके जो हमारी टारगेटेड ऑडियंस है उस तक हम रीच कर सकते हैं वाया डिजिटल मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता है, जनरली जो इसकी ऑडियंस होती है, टारगेटेड ऑडियंस, वो काफी एक एक जनरल उस पर होती है। जैसे मेरा कैफे है, ठीक है, कैफे मेरा गुड़गांव में है, ठीक है, तो पीपल नोएडा से भी आ सकते हैं, कहीं से भी आ सकते हैं, बट उसके ऑनलाइन प्रेजेंस है हमारे पास। बट ज्यादा ऑडियंस हमारी किधर से आएगी, जो विद इन अ गुड़गांव या उस पर्टिकुलर लोकेशन के आसपास रहते होंगे। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग से हम ज्यादा कस्टमर्स तक रीच कर सकते हैं, ट्रेडिशनल मार्केटिंग से हमारी जो टारगेट ऑडियंस होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। ठीक है, जनरली जो डेमोग्राफिक्स है या टारगेटेड ऑडियंस है और चीजें, वो थोड़ा सा उसमें डिफरेंट आता है। रीच हमारी कम हो जाती है ट्रेडिशनल मार्केटिंग में और टारगेटिंग भी, बट डिजिटल मार्केटिंग में हमारा वाइड रीच और टारगेटिंग का ऑडियंस होता है। ठीक है। देन थर्ड पॉइंट है कॉस्ट इफेक्टिव, कि कौन सी कॉस्ट इफेक्टिव होगी, कौन किस में ज्यादा पैसे लगेंगे, किस में कम पैसे लगेंगे, वो है। डिजिटल मार्केटिंग में क्या है, इट इज मोर कॉस्ट इफेक्टिव स्पेशली फॉर स्मॉल बिजनेस कैंपेन्स, और जो स्पेसिफिक बजट्स वगैरह है, डिजिटल मार्केटिंग टूल्स हैं, और वो सारी चीज़ें हमें डिजिटल मार्केटिंग में कम पैसों में हमें ज़्यादा फायदा मिल जाता है। बट ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता है, अगर मान लो हमें कोई एड वगैरह रन करानी है, हमें टीवी पे करानी पड़ेगी, न्यूज़पेपर में कराना पड़ेगा, रेडियो में भी हम करा सकते हैं, बिल बोर्ड्स में भी हम करा सकते हैं। तो बिल बोर्ड्स वगैरह इन सब का खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, एज कम्पेयर टू डिजिटल मार्केटिंग, हम डिजिटल मार्केटिंग में एज सच इतना कोई खर्चा नहीं कर रहे हैं। हमने वीडियो वगैरह बनवा दी कहीं से, वो हमने पोस्ट कर दिया। बट ट्रेडिशनल मार्केटिंग में सारी चीज़ों का खर्चा आएगा। अब किसी कैमरामैन को हायर कर रहे हो वीडियो बनाने के लिए, बाकी और चीज़ें हैं, तो उन सब का खर्चा आएगा। टीवी पे ऐड चलाने के लिए देनी है, उनको पैसे देने हैं, टीवी वाले को पैसे देने हैं, बिलबोर्ड्स आपने छपवाने हैं, उनको पैसे देने हैं, न्यूज़पेपर पे ऐड छपवानी है आपने, उनको पैसे देने हैं। बट डिजिटल मार्केटिंग में ऐसा कुछ नहीं है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव है, ज्यादा पैसे लगते हैं, बट जो इनकम आएगी वो हमारा थोड़ा सा वो होता है कि आएगी कि भी ये नहीं आएगी, थोड़ा सा वैसा होता है। बट डिजिटल मार्केटिंग में हमने थोड़े से पैसे लगाए, बट हमारे पास में एक आइडिया तो है कि हाँ, इतने लोगों के पास मेरा कंटेंट जाएगा, तो इतने लोग हो सकते हैं कि इंटरेस्टेड होंगे हमारे कंटेंट। ठीक है, तो उससे क्या होगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो हमारा कस्टमर है वो किस में कितने आएंगे, या ट्रेडिशनल मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग में, तो वो हमें यहाँ से देखने को मिलता है। जब हम प्रैक्टिकली करते हैं तो चीज़ें हमें समझ में आती है कि किस में कितना ज़्यादा पैसे लग रहे हैं। ठीक है। देन आता है इंटरएक्टिविटी एंड एंगेजमेंट। तो डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है, अलाउज फॉर रियल टाइम इंटरेक्शन विद द ऑडियंस। जैसे मैंने वीडियो पोस्ट करी, अपनी वीडियो डिजिटल मार्केटिंग की कोर्स की वीडियो पोस्ट करी, अगर कोई यूज़र मेरे उस वीडियो पे आया तो वो क्या करेगा, वो मुझे या तो कांटेक्ट करेगा, अगर सोशल मीडिया पे मैंने पोस्ट करा है तो मेरे को डायरेक्ट मैसेज करेगा, या अगर इंटरेस्टेड होगा तो वो कमेंट में अपनी डिटेल्स सेंड कर देगा।
ठीक है, ये हो गया मेरा डिजिटल मार्केटिंग के अंडर कि यूजर कैसे मेरे कंटेंट के साथ इंटरेक्ट करेगा। देन आता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग में। ठीक है, जनरली लैक्स डायरेक्ट इंटरएक्टिविटी। ठीक है, मान लो मैंने कोई गाड़ी की एड चलाई, होंडा की चलाई या टोयोटा की चलाई, एड चलाई मैंने, उसका बिजनेस है मेरा। ठीक है, मैंने टीवी चैनल्स पे चला दिया, उसमें ना कॉन्टैक्ट डिटेल्स है ना कोई अदर डिटेल्स है, सिर्फ मैंने ऐड चला दी। तो जनरली ज़्यादा प्रॉब्लम्स यही फेस होती है कि अगर हमने वो ऐड दे दी, रन रन कराने के लिए दे दी, अगर उसमें कुछ चेंजेस चाहिए या कुछ चाहिए तो मुझे वो चेंजेस कराने में भी टाइम लगेगा। बट डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है, एट अ टाइम पे मैं उसको चेंज भी कर सकती हूँ, चेंज करके उसी टाइम पे अपलोड भी कर सकती हूँ। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में मेरे को थोड़ा सा टाइम लगेगा, और इजी कम्युनिकेशन इसमें नहीं होता है। एक इंसान को बोला, फिर दूसरे इंसान को बोला, फिर तीसरे इंसान को बोला, तो इसमें थोड़ा सा हेक्टिक होता है। इसीलिए जनरली लोग ट्रेडिशनल मार्केटिंग के लिए नहीं जाते हैं। आज की टाइम पे सारी जो भी जितने भी बिजनेसेस हैं वो डिजिटल मार्केटिंग या ऑनलाइन अपने रन कर रहे हैं। ठीक है, तो इंटरेक्टिविटी इसमें डिजिटल मार्केटिंग में काफ़ी इजी होता है। आप एट अ टाइम पे ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, बट ट्रेडिशनल मार्केटिंग में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वे ऑफ कम्युनिकेशन थोड़ा सा डिफरेंट होता है। वो पहले तो वो ऐड कहाँ से चल रही है वो सारी चीज़ें चेक करके, फिर वो सारे एट द एंड जाके उनकी कॉन्टैक्ट की डिटेल्स मिलती हैं। तो इसमें थोड़ा सा डिफिकल्टीज होती है। ठीक है, इंटरेक्शन और ऑडियंस के साथ एंगेज करने में। देन आता है मेजरेबिलिटी एंड एनालिटिक्स। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है, प्रोवाइड्स डिटेल एनालिटिक्स एंड मेट्रिक्स अलाउइंग मार्केटर्स टू ट्रैक द परफॉर्मेंस ऑफ कैंपेन्स इन रियल टाइम मेट्रिक्स। ठीक है, मैंने फेसबुक ऐड चला दिया, मैं उसको हर एक घंटे में भी चेक कर सकती हूँ कि क्या मेरे पास मैसेज आया, या ये कंटेंट जो मैंने बनाया है वो कितने लोगों तक पहुंचा। वो सारी चीज़ें मैं अपने इसमें देख सकती हूँ, और कितने लोग मेरे सोशल मीडिया के थ्रू या गूगल एड्स के थ्रू मेरे वेबसाइट पर आए, वो भी मैं एनालिटिक्स के थ्रू यहाँ पे चेक कर सकती हूँ। और कैंपेन कैसे चल रहा है, उसकी सर्च अपेयरेंस ऊपर ऊपर जा रही है, या फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, या डाउन हो रही है, वो सारी चीज़ें भी मुझे एज एन डिजिटल मार्केटिंग में दिख जाती हैं। ठीक है, मैं चेक कर सकती हूँ एट अ टाइम पे, इन अ रियल टाइम। रियल टाइम मतलब उसी टाइम पे। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या हो गया, मेजरमेंट कैन बी मोर चैलेंजिंग। हम यहाँ पे मेजर ही नहीं कर पाएंगे कि कितने लोगों ने मेरा ऐड देखा। मान लो गाड़ी की ऐड आ रही है, घर में 10 लोग बैठे हैं और वही टीवी देख रहे हैं, तो मुझे उसमें आइडिया नहीं है कि कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने नहीं देखा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक सर्वे करना पड़ेगा कि कितने लोगों ने देखा कि कितने लोगों ने नहीं देखा। तो जो मार्केटर्स हैं वो क्या करते हैं, सिर्फ वो सर्विस के ऊपर ही डिपेंड होते हैं। इसीलिए वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में बहुत डिफरेंट होता है कि आपकी सेल्स कितनी गई है, लीड्स कितनी आई हैं, वो सारी चीजें एक ट्रैक करने के लिए मेनली जो फोकस होता है वो हमारा सर्विस के ऊपर होता है। जितने भी मार्केटर्स हैं, बिजनेस ओनर्स हैं, वो सर्विस के ऊपर डिपेंड रहते हैं। बट डिजिटल मार्केटिंग में ऐसा नहीं है। हम एट अ टाइम पे चेक कर सकते हैं कितनी लीड हमारे पास में आई है, उसको क्या रिप्लाई देना है, सारी चीजें मेजर कर सकते हैं बेसिकली कि परफॉर्मेंस किस में ज़्यादा है, कौन सा कंटेंट में ज़्यादा है, ऐसे। देन आता है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी एंड एजिबिलिटी। तो मोर फ्लेक्सिबल कौन सा है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग है, ये क्या करता है, इट ऑफर्स द एबिलिटी टू मेक रियल टाइम एडजस्टमेंट टू कैंपेन। जैसे मैंने बताया कि अगर कोई मैंने ऐड रन करी है, उसमें मुझे कुछ चेंज करना है, मैंने प्राइस चेंज कर रहे हैं, या प्राइस कम करना है, या दूसरा कोई फ़ोन नंबर डालना है, अदर डिटेल्स डालनी है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, वो एट अ टाइम पे मैंने कैंपेन खोला, उसमें एडिट कर दिया। ठीक है, एडिशन वगैरह कर दिया, उसमें और डिटेल्स कर दी। तो मैं उसको, सपोज मुझे वीडियो ही चेंज करनी है, तो मैं क्या करूँगी, दूसरा कैंपेन रन करूँगी या उसी कैंपेन में चेंजेस करूँगी, और वीडियोस वगैरह जो भी है, एडिशनल चीज़ें मुझे ऐड करनी है, वो मैं वहाँ से ऐड करूँगी। इट कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द, अगर कोई कस्टमर का फीडबैक है, या कोई यूज़र गया मेरे वीडियो पे, उसने बोला ये वीडियो अच्छी नहीं लग रही, तो ये गलत वो उस पर है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग चेंज वहां पे से कर सकते हैं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता है, ऑफन इन्वॉल्व्स लॉन्गर लीड टाइम फॉर प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। तो इसमें पहले प्लान करना पड़ता है कि वीडियो कैसे बनानी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या क्या चीज़ें, कितनी इन्वेस्टमेंट इधर लगेगी, कितनी इन्वेस्टमेंट उधर लगेगी। तो ये सारी चीज़ें हमें
जब भी कैंपेन हमको रन करना होगा तो हमें यहाँ पे टाइम लगेगा, उसमें काफ़ी टाइम इसमें ले लेगा, मेरा एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म होगा। ठीक है। अगर कुछ हमें चेंजेस कराने होंगे तो उसके लिए भी काफ़ी टाइम ले लेगा, क्योंकि विद इन अ टाइम ये चेंज नहीं होता है। ठीक है। देन लास्ट पॉइंट होगा लॉन्गेविटी ऑफ मैसेज। सो डिजिटल मार्केटिंग में क्या है, मैसेजेस कैन बी इजीली एडिटेड और रिमूव एंड कैंपेन्स कैन बी अडेप्टेड क्विकली टू चेंजेस चेंजिंग एनी सर्कमस्टांसेस। जैसे मुझे डिलीट करनी है तो एट ए टाइम पे मैं डिलीट करवा सकती हूँ वो। कैंपेन में मुझे एडिट करना है, मैं एडिट कर सकती हूँ। अगर कोई बैड मैसेज होगा या बैड रिव्यूज होंगे या कमेंट्स होंगे तो वो भी मैं वहां से रिमूव करवा सकती हूँ। ठीक है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में एक बारी एडवर्टीजमेंट चला गया, वो प्रिंट हो गया, उसके बाद में कुछ भी चेंजेस हम वहां से नहीं कर सकते। अगर किसी ने, लाइक हम सपोज हमने कोई वीडियो बनाई अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड, और उसमें हमने ऐसी एक चीज ऐड कर दी जो ऐड नहीं करनी थी, जो यूजर पे इम्पैक्ट पड़ेगा, तो वो हमने ऐड कर दिया, तो उसके लिए क्या होगा कि चेंजेस कराने में टाइम लगेगा, जब तक तो यूजर्स उतने सारे देख लेंगे उसको, और एक बैड इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे जो कंपनी के ब्रांड है उस पर, ब्रांड अवेयरनेस उसकी डाउन हो जाएगी। ठीक है। सो दीज आर ऑल द डिटेल्स कि डिफरेंस क्या है डिजिटल मार्केटिंग में और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में। एनी डाउट? नो मैम। ओके, आई शेयर यू द बोथ द पीडीएफ एंड यू विल लेट मी नो इन नेक्स्ट क्लास कि आपको कितना समझ में आया कितना नहीं आया। आई जस्ट गिव यू ऑल एक क्विक टेस्ट इन नेक्स्ट क्लास कि क्या क्या हमने पढ़ा था क्या नहीं पढ़ा था। ओके। Okay, I think these are to the like two topics which we covered, and we'll be seeing in on next class. Till then, आप रिवाइज करिए।